uh, first thing, Bohr came, right? Now Bohr gave, guys, can you hear me? Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Yes. First time what Bohr did, Bohr gave the values of velocity, energy, radius, that is position for a particular electron. Then de Broglie says that, dude, the thing is, electron is moving like a wave. If the electron is moving like a wave, you cannot exactly predict where that wave will be. You just say that the probability of wave to exist over there will be there. तो कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ वेव तुमको नहीं मिल सकता. The same thing given by Heisenberg. Heisenberg clearly told that it is impossible to calculate the exact position and exact momentum, that is velocity, for a particular electron simultaneously. There will be always error associated with it. That's what we have done in the last two classes, right? Yes, sir. Yes, Now sir. understand one thing. Now this Schrödinger was an Austrian scientist, right? He was very good with waves. Now the moment he understood that the electron is moving like a wave, that guy actually formulated an equation, a wave equation for an electron. Getting a point? Now understand that how the stages for formulation wave functions for an electron which is moving exactly like a wave. Getting a point, guys? So now, before starting this thing, right, what Schrodinger did actually, I'll just give a zest of a wave to you. Okay, let's say I have a one dimensional wave. One dimensional wave का मतलब होता है कि the wave is moving along a particular axis, not in 3D or only in single axis, right? Now understand that I'll consider a wave. Let's say it is moving along minus x axis. Now understand that these are the amplitudes of the wave. You know that na, amplitude is a vector quantity. These are the amplitudes, and every point these amplitudes are changing, right, guys? Yes, sir. Yes, sir. Now these are the amplitudes of a wave. Now amplitude can be positive, amplitude can be negative, right? Let's say, uh, Shreyansh, I can take plus x axis also, but I'll take minus because the wave function no is simple for minus x axis. So we'll check the wave function for minus x axis first. Okay. Now understand that. Let's say what is psi. This symbol is known as psi. P is silent, right? Psi. बोल के दिखाओ. Psi. Psi, right? Okay. Now this symbol is psi. What is this symbol represent actually? It is an amplitude function. क्या है ये? Amplitude function. हाँ, क्या करता है ये amplitude function? Various positions पे, like 0 degree पे, 90 degree पे, 180 degree पे, या 270 degree पे, 360 degree पे, ये तुमको amplitude बताएगा. Getting it? तो psi is an amplitude function. The maximum amplitude जो है that is a naught minus of a naught. Let's say. तो पता है क्या, अगर कोई भी वेव इस तरीके से मूव कर रही है. अच्छा, ये ग्राफ किसका है? व्हाट इज दैट ग्राफ रिप्रेजेंट हियर?
तो साइन थीटा। साइन कर्व का है, साइन का। तुम्हें पता है क्या, कोई भी वेव फंक्शन होता है ना, वो हमेशा डाउ टू साई बाय, सपोज ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो डाउ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 को फॉलो करेगा। मतलब कोई भी वेव फंक्शन है ना जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, चाहे वो प्लस एक्स एक्सिस हो या माइनस एक्स एक्सिस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये वेव फंक्शन इस डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करेगा, इवन दो दिस डबल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द बेसिस फॉर ऑल द वेव्स। गेटिंग अ पॉइंट, कि कोई भी वेव फंक्शन इसको तो फॉलो करना ही है। नाउ मैंने एक वेव लिया, इस वेव का जो वेव फंक्शन है वो मुझे पता है, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन। इसका जो वेव फंक्शन है दैट इज साई विच इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, वेयर ए नॉट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, साइन तो सबको पता ही है, ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, angular frequency is represented as 2 pi by t, 1 by t is frequency, so 2 pi nu, where k is 2 pi by lambda, right? That is equal to 1 by lambda is wave number. Getting it? So that is the value of k which I am using here, omega angular frequency. Getting a point? अब खुद ही सोचो, जब पूरा साइन एंगल 0 था तो आप साई की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 इज व्हाट, 0. तो यहाँ पे 0 आया ना, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो साइन 90 ओवरऑल 1. बिकम्स इक्वल टू 1, तो साई विल बिकम, A naught. या, तो आई एम गेटिंग ए नॉट, राइट? सर एक और एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ बेटा, Starting मैंने से। सीधा बोला, अभी सुनना ध्यान से, कोई चीज मिस मत करना, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कोई भी वेव फंक्शन है ना, उसने ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करना है। मैं तुमको श्रोडिंगर नहीं बता रहा हूँ, मैं तुमको वेव इक्वेशन और वेव फंक्शन बता रहा हूँ जो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे आगे आके, ठीक है? आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैंने एक वेव ड्रॉ करा जो कि माइनस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो अगर कोई भी वेव एक पर्टिकुलर एक्सिस में मूव करती है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में, तो उसका डबल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 होता है। तो मैंने एक वेव बनाया, मुझे इस वेव का फंक्शन पता है, दैट वेव फंक्शन इज साई इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, एंगुलर वेव नंबर कहते हैं इसको, ठीक है? सर हाँ बेटा, वो जो साई है ना सर, उस वो जो वाई एक्सिस उसका है ना। वाई नहीं है बेटा, वो एम्पलीट्यूड है बस, इट इज नॉट वाई एक्सिस, इट इज अ एक्सिस वेयर इट इज रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड। वो कहीं पे भी हो सकता है, वाई ठीक जेड है। के बीच में इनफाइनाइट पोजीशन है जहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तुम्हारे पास सी 360 रोटेशन का काम है, बट वो एक एक्स एक्सिस है। गेटिंग इट? मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी वेव का जो वेव फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल इसका वेव फंक्शन है, ये किस एक्सिस में मूव कर रही है, एक्स एक्सिस में, चाहे वो प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो, डजेंट मैटर, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फॉलो करेगा हमेशा। तो आई विल प्रूव दैट कि कोई भी वेव इस फंक्शन को फॉलो करेगी, देन आई विल यूज दिस फंक्शन। गेटिंग अ पॉइंट? फॉर इलेक्ट्रॉन पहले मैं प्रूव करता हूं कि यार ये वेव फंक्शन ना इस डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करेगा। अगर ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करेगा तो मतलब ये क्या है, वेव फंक्शन है। गेटिंग अ पॉइंट? सो इट इज अ टेस्ट फॉर एनी वेव। तो कोई भी वेव का वेव फंक्शन होगा वो ये फॉलो करना ही करना है। गेटिंग अ पॉइंट? गेटिंग अ पॉइंट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा, अब सुनो, समझना है इस चीज को, ठीक है? व्हाट वी आर डूइंग हियर, मैंने क्या किया मैंने लिखी थी इक्वेशन डाउ टू साई बाय डाउ एक्स स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू सर जीरो। डिफरेंशिएशन है ना, हाँ वो डिफरेंशिएशन है। व्हाट इज तो के डी लिख बेटा? सकते। के इज 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा वेव नंबर होता है। ठीक है वेदांत? नाउ लिसन, लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डी नहीं है, डाउ है। डाउ मतलब थोड़ा टिल्टेड होता है, इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। या अब सुनो, पार्शियल डिफरेंशिएशन काम कैसे करता है। सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है w इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर z4, जिसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है। नाउ अंडरस्टैंड दैट x, y और z दे आर वेरिएबल्स। खुद सोचो, अगर मैंने तुमको बोला कि मुझे इसको डिफरेंशिएशन करना है, dw बाई dx करना है, तो उसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं dw बाई dx करूंगा तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3x square. 3x square. 3x स्क्वायर, और बाकी की टर्म एज इट इज आ जाएगी प्लस। अब x क्यूब को ऐसे ही छोड़ देंगे, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y. 2y dy बाई dx। हाँ कि ना? Yes, sir. z4, उसके बाद x क्यूब y स्क्वायर 4z क्यूब dz बाई dx। एग्रीड? Yes. Yes, sir. चल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब सुनो मेरी बात। अगर मैंने फुल डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास ये आएगा। अगर मैंने सेम चीज बोला कि डाउ w बाय डाउ x करना है, तो मतलब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा ना, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मैं उसको वेरिएबल कंसिडर करूंगा, बाकी सब कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर मुझे पता है y और z वेरिएबल है, बट अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं y स्क्वायर और z4 को कांस्टेंट मान लूंगा। तो अगर ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे तो क्या मैं इनका डिफरेंशिएशन करूं क्या? No, sir. तो इसको एज इट इज लिख लें बाहर, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? यू अंडरस्टूड पार्शियल डिफरेंशिएशन और कंप्लीट डिफरेंशिएशन में फर्क क्या है? कंप्लीट डिफरेंशिएशन में सारे वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में बाकी उन वेरिएबल्स को कांस्टेंट माना जाता है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम नहीं करते। गेटिंग माय पॉइंट? गाइस, इतना समझ में आया? सिंपल मैथमेटिक्स है। Yes. Yes, sir. सबको समझ में आया ये? तो बाकी इसको कांस्टेंट मानेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0. बेटा मल्टीप्लाई मैंने वो तो इट इज मल्टीप्लाइड राइट। y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर विल बिकम 10x राइट। मैं उसको 0 तो नहीं बोल दूंगा, 5 को नहीं. मल्टीप्लाई करूंगा ना। हाँ. हाँ, तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में वो। गेटिंग अ पॉइंट? Yes. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। अभी समझना क्या हुआ। मेरे पास साई है a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। गाइस मुझे ये बताओ, ये जो है किस किस एक्सिस के थ्रू पास कर रही है? ये वेव किस एक्सिस के थ्रू पास कर रही है? बाबा, ये वेव किस एक्सिस के थ्रू पास कर रही है? Negative Yes. x. Negative x axis. एक्स एक्सिस। किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। X axis. नेगेटिव पॉजिटिव भाड़ में जाए, फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग अ पॉइंट? तो जब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, तो जस्ट टेल मी वन थिंग, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो डाउ साई बाय डाउ एक्स क्या आएगा? ए नॉट एज इट इज आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Cos. कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। एग्रीड? अब अंदर आ जाओ। टाइम चेंज हो रहा है, बट क्या मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ क्या? नहीं सर. तो मैं इसको क्या ट्रीट करूँ? सर constant. ओके, तो ये हो गया 0, बचा के एक्स।
तो kx का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सर के K. k, तो a नॉट k cos ओमेगा t आ जाएगा. करेक्ट? गेटिंग इट? यस हाँ सर सर. वेरी गुड. अब एक काम करो, एक बार और डिफरेंशिएशन करो. डाउ टू साई बाय डाउ एक्स स्क्वायर कितना आएगा? ए नॉट के तो कांस्टेंट है, रख लो इसको इधर ही. कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन. सर माइनस साइन माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. एग्रीड? हाँ सर. वेरी गुड. ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन? 0 सर के एक्स का के तो मल्टीप्लाइड बाय के इंटू के करना पड़ेगा. गेटिंग इट? सो आई विल बी गेटिंग डाउ टू साई बाय डाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए नॉट माइनस के स्क्वायर ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर अब एक काम करो, इस इक्वेशन को इधर लेके आओ. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डाउ टू साई बाय डाउ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0. एग्रीड? व्हाट इज ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स? Psi. साइन. So put over there what I'll get finally. Dow to psi by dow x square plus k square psi is equal to 0. Agreed? तो मतलब ये वेव फंक्शन ने अल्टीमेटली ये रूल फॉलो किया कि नहीं किया? फॉलो किया सर हाँ, तो किया. मतलब हाँ, सर. क्या हो गया? ये वेव फंक्शन हो गया. तो मैं भी यही कह रहा हूं कि हर कोई वेव फंक्शन नो विल फॉलो दिस डबल डिफरेंशियल वेव फंक्शन और वेव इक्वेशन. जिसने ये इक्वेशन फॉलो नहीं किया वो वेव नहीं है. गेटिंग अ पॉइंट? हाँ सर. हाँ, तो अभी एक काम करो, लिख लो जितना भी काम हुआ है अभी. ठीक है? कॉपी दा. लिख लिया सर. सब लिख लिया? डन सर यस सर. सर नीचे का लिखा है सर. वाओ वाओ. आगे चले? यस सर यस सर. सर 1 मिनट सर. Wait, sir. तो हमने ये सीखा कि कोई भी वेव डबल डिफरेंशियल फॉर्म फॉलो करेगा. कोई भी पार्शियल डिफरेंशिएशन और कंप्लीट डिफरेंशिएशन में फर्क क्या होता है. एंड अब श्रोडिंगर ने क्या किया, कैसे किया, नाउ यू विल कम टू नो. ठीक है? नाउ द थिंग्स बिकम सिंपल. बट उसको ये साई का वैल्यू मिला कैसे? मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, पहले लिख तो लो. ओके ओके गाइस, आगे चलें. सर 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो. 2 मिनट. ऊपर स्क्रॉल करो ना. हाँ बेटा ले. यस डन. Okay. Now listen.
Now understand one thing. An electron is moving like a agreed? Agreed? Yes, sir. Hence, it should follow double differential wave equation. Agreed? Yes, sir. Acha, but the electron is moving on the x-axis or in 3 dimension? 3 dimension. 3D. The electron is moving in 3 dimension. That is x, y, and z. So, double differential wave function. Double differential wave function for the electron will be dou 2 psi by dou x square, that is along x-axis, plus dou 2 psi by dou y square because of y-axis, dou 2 psi by dou z square. This was z-axis, plus k square psi is equal to 0. Agreed? Agreed? Yes, sir. Very good. Now listen. What is k? Sir, angular 2 pi wave. by 2 pi lambda. by lambda. 2 pi 2 by pi lambda. by lambda. Very good. What is k square? Sir, 4 4 pi pi square square by by lambda square. lambda square. Very good. Now just tell me, this is lambda for matter wave or for EM wave? What is electron? Matter, sir. Matter, sir. So what is Matter. lambda for electron? क्या आएगा? Sir, h by H by momentum. momentum. H by P. Correct. So lambda square क्या होगा? H square by momentum square. Getting it? So this is first part. This thing is second part. Now understand that मैंने क्या कहा था? बोहर 100% गलत नहीं था. What was the correct thing for Bohr? Sir, energy levels का की क्या relation? Energies of energy levels, right? तो Yes, इसने sir. क्या किया? जो बोहर की चीजें सही थी ना, वो ले ली. What he has taken? Energy values. Getting a point? Getting a point? Yes. Now understand that E is the energy values given by I'll not write it here. Once again. Understand one thing. E is energy values given by Bohr. That is 2.18 into 10 raised to power minus 18 joules per atom into what is that? Z square by N square. Agreed? That Yes, is sir. minus 13.6 electron volt per atom. SI units में लिया है मैंने joule per atom, right? Now this is nothing but the potential energy plus kinetic energy, because total energy is always equal to potential plus kinetic energy. Yes or no? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Now understand one thing. Kinetic energy
is equal to p square by 2m. Agreed? And potential energy is represented by a symbol V या U. We will use V. Getting it? In most of the textbook, U can also be there. But the thing is, understand one thing. So shall I say that kinetic energy, which is equal to P square by 2m, should be equal to total energy minus potential energy? Yes, sir. So what is the value of P square? So total energy minus potential energy into 2m. Getting it? This is third. Just put P square in 1. From 1 and third. क्या आएगा? Lambda square will become equal to h square by 2m EV. Any doubt? बेटा कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. Very good. Now understand one thing. From 2 and 4, just put lambda square here on this part. What I'll get? K square will become equal to 4 pi square by h square into 2m into e minus v. Agreed? सर 2 मिनट थोड़ा धीरे जाइए ना. कहाँ पे जाना है? धीरे बता पहले. सर 1 मिनट बस रुक जाए, नोट डाउन सर थोड़ा मतलब करने दीजिए. कि सर बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस हो रहे हैं ना सर. हाँ सर वही मतलब बहुत स्पीड. सुनो. K is equal to 2 pi by lambda. ठीक है? हाँ K स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया. ठीक है? हाँ सर. लैम्डा क्या होगा? h by p. yes sir. यस सर. लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा? h स्क्वायर p स्क्वायर. कोई दिक्कत? No. वेरी गुड. टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. एग्रीड? यस सर. वेरी गुड. नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? p स्क्वायर बाय 2m. एग्रीड? यस सर. पोटेंशियल एनर्जी को मैंने कहा u मान लो या फिर v मान लो. आई टेक v. तो टोटल एनर्जी इज E. तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? E माइनस v. यस सर. Getting it? तो काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m which is equal to E माइनस v. तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2m E माइनस v. कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर सर. ठीक है. उसके बाद p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डालनी थी. लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा. लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डालनी थी. k स्क्वायर आ जाएगा. गेटिंग इट? यस सर. तो ये हो गया p सर. स्क्वायर की वैल्यू डाली, ये आ गया. उसके बाद 2 and 4 से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू डाली, k स्क्वायर आ गया. सो आई एम गेटिंग k स्क्वायर एज as 8 pi square m E minus v divided by h square. Getting it? यस सर. समझ में आया? सर हाँ. सर आप वो पोटेंशियल एनर्जी का बाद वाला स्टेप बता सकते हो? मेरे को समझ हाँ. नहीं आया. देखो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी होता है. यस सर. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? E माइनस v. यस सर. So that kinetic energy will become equal to E minus v. Understood? यस सर. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? p स्क्वायर बाय 2m. तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख दिया? p स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू E माइनस v. करेक्ट? यस सर. तो p स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2m इंटू E माइनस v. यस सर. हाँ, इस p स्क्वायर को इधर डाल दिया, लैम्डा स्क्वायर को इधर डाल दिया, मेरे पास ये आ गया. ओके सर. ठीक है? हाँ गाइस, आगे चलें. Yes. Yes, sir. तो श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन सोची थी, दैट वाज डाउ 2 साई बाय डाउ एक्स स्क्वायर प्लस डाउ 2 साई बाय डाउ वाई स्क्वायर प्लस डाउ 2 साई बाय डाउ जेड स्क्वायर. के स्क्वायर की जगह क्या डालूंगा? 8 पाई स्क्वायर m
E minus V divided by h square psi into 0. So this is the equation which is formed by Schrödinger. अच्छा एक बात बताओ, ये इक्वेशन सारे एटम्स के लिए है कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए? Like, ये जो हाइड्रोजन लाइक, हाँ, ये जो काइनेटिक एनर्जी इसने डाला है इधर, E माइनस विच इज काइनेटिक एनर्जी, ये कहाँ से आया? बोर से आया ना? हाँ सर, निकाला था वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, ठीक है? सर मैंने सुना है कि सर ये इक्वेशन अगर हम लोग हाइड्रोजन के बाद वाले एटम्स को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सुपर कंप्यूटर की जरूरत है। हाँ, तो इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है ये। मैं बताता हूँ क्या सीन है। ये जो E माइनस भी है ना, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट? अगर मैंने Yes, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो दोनों इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में, यस सर। दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से अट्रैक्ट कर रहे हैं, यस सर। और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल भी कर रहे हैं। सर फिर बहुत सर बड़ा उनको कॉम्प्लेक्स हो कैलकुलेट जाएगा। करना एनर्जी बहुत हाँ, डिफिकल्ट तो रहता है। नेट एनर्जी, वो भी मूविंग पार्टिकल्स की, वो जो रिपल्शन होगा वो क्या स्टैटिक होगा कि डायनेमिक होगा? डायनामिक होगा। हाँ, तो क्या कैलकुलेट कर पाओगे? ठीक है सर, समझा। समझा ना? So that is why it is not so simple to solve for multi-electronic species. Got that point? सर तो इसमें हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए क्या केस रहेगा? इसमें हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ये केस है कि जो उसमें E माइनस वी वैल्यूज लिए हैं काइनेटिक एनर्जी की, वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए लिए हैं, बिकॉज ये बोहर ने दिया था, राइट? हाँ सर। सर बट चाहे सुपर कंप्यूटर्स चाहिए हो, वैलिड तो है ना इक्वेशन, या हाँ, फिर? इक्वेशन वैलिड है ना बेटा? ओके सर। सर यही अपना फाइनल इक्वेशन है क्या? क्या? यही अपना फाइनल इक्वेशन है? हाँ, ये फाइनल इक्वेशन है जो श्रोडिंगर ने दिया था। जनरली बुक्स के अंदर ना ये इक्वेशन डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है? तो ये हमने डिराइव किया है अभी, गेटिंग माय पॉइंट, कि कैसे आया ये। इससे दो चीजें पता लगी तुमको कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक अ वेव, सो ये डबल डिफरेंशियल फॉलो होगा। दूसरा, जो एनर्जी वैल्यूज ली थी वो कौन सी ली थी? बोहर की। बस ये दो मेन पॉइंट इससे ये पता लगता है। गेटिंग इट? गाइस आगे चलें। Yes, sir. कॉपी कर लिया? Yes, sir. हाँ, ये पहली बार केमिस्ट्री में ऐसा हो रहा होगा तुम्हारे साथ, राइट? बट इट्स फाइन। इस श्रोडिंगर मॉडल, राइट? तभी श्रोडिंगर मॉडल का कोई ड्रॉबैक नहीं निकला, यू नो व्हाई, इजंट इट? सर इतना कंफ्यूज कर दिया था दूसरों को। क्या कह रहा है बेटा? सर आपने बोला था उसने दूसरों को कंफ्यूज कर दिया था। ऑब्वियसली। कैसा लग रहा है तुमको? हाँ, अरे इतना एक्यूरेट है कि इसमें कोई ड्रॉबैक ही नहीं। हाँ, सी ना, बिकॉज हमने खुद ही डिराइव किया ना श्रोडिंगर वाला इक्वेशन अभी। सर बहुत मैथमेटिकल है तो इसीलिए नहीं हम लोग कह सकते। हाँ, अदर फॉर्म्स ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, वो हमने जो डिराइव किया था अभी इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या था वो? डाउ टू साई बाय
डाउ एक्स स्क्वायर प्लस डाउ 2 साई बाय डाउ वाई स्क्वायर प्लस डाउ 2 साई बाय डाउ जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। एग्रीड? Yes, sir. मैं क्या कर रहा हूँ, ये ना डाउ 2 बाय डाउ एक्स स्क्वायर, डाउ 2 बाय डाउ वाई स्क्वायर, डाउ 2 बाय डाउ जेड स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। डाउ 2 बाय डाउ एक्स स्क्वायर प्लस डाउ 2 बाय डाउ वाई स्क्वायर प्लस डाउ 2 by dou z square. I have taken it common, which is applied on psi. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Plus 8 pi square m by h square e minus v psi is equal to 0. Listen, the thing is, इस पूरे ऑपरेटर को ना लैपलास ऑपरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? Sir, Laplace operator. Which is defined as del square. तो मैं नेक्स्ट इक्वेशन में इस पूरी चीज को डेल स्क्वायर लिखूंगा। Sir, क्या स्क्वायर? डेल 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 डेल। अच्छा। तो डेल कंप्यूटर आता ना? Yes, sir. Yes, sir. Now listen. So I'll be getting here del square psi plus 8 pi square m by h square e minus v psi is equal to 0। ये दूसरी फॉर्म है, मतलब सेम इक्वेशन का दूसरा वर्जन है इन द फॉर्म ऑफ लैपलास ऑपरेटर। ठीक है? आफ्टर दिस यू डू वन थिंग, इसको लिखा डेल स्क्वायर साई प्लस ये आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर इंटू ई, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ई साई माइनस 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर इंटू वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ही रख रहा हूँ, 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर इंटू ई साई इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर इंटू वी साई माइनस डेल स्क्वायर साई। ठीक है? अब मैं पूरी इक्वेशन को ना 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आई विल बी गेटिंग ई साई। Sir, हाँ, please wait 1 minute. अभी कहाँ तक पहुंचे हो? एक मिनट बस रुक हाँ हाँ, सर वो ऑपरेटर का नाम क्या बताया? लैपलास लैपलास अंकल ये रखा ना। Okay. रुको यार, कहाँ गया? रुको, this Laplace operator. Del square चले आगे। Sir, हाँ, मैंने पूरी इक्वेशन को 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये उल्टा चला जाएगा। तो ई साई इज इक्वल टू वी साई पर किससे डिवाइड किया? 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर इस पूरी टर्म से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर
h square by 8 pi square m psi, राइट। अब एक काम करो, E psi is equal to V minus del square h 8 pi square m, इसको बाहर ले लो और यहाँ psi आ जाएगा, करेक्ट। इस नए ऑपरेटर को ना एच कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एच कैप। एच कैप का मतलब होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो ये पूरा एच कैप हो जाता है। सो आई विल बी गेटिंग ई साई इज इक्वल टू एच कैप साई। तुमने अगर एनसीईआरटी खोल के देखा हो तो तुमको ये इक्वेशन मिलेगी, राइट? Yes. Yes, sir. हाँ, तो दिस इज हाउ इट कम्स। That is third form of Schrodinger equation. This is second form of Schrodinger equation in the terms of Laplace operator, and this is the very first form of Schrodinger equation given by Schrodinger. कुछ नहीं है, rearrangement करके लिख रहा हूँ। तो ये तीनों equation you should know these are same thing. इतने बड़े इक्वेशन को सर 4 वेरिएबल में डाल के फिट कर दिया। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, पता है? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज एन एनर्जी ऑपरेटर, कुछ भी कर सकता है। अरे एक बार बताओ, साई साई कैंसिल हो जाएगा ना? No, sir. थैंक गॉड, गोली मार देता है, पता है तुमको। सर क्योंकि वो ऑपरेटर है ना, वो हाँ, उसके ऊपर कर रहे हैं। 5x इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा होगा तो क्या एक्स एक्स कैंसिल कर दोगे? No, sir. साइन भी तो ऑपरेटर है। साइन इज आल्सो एन ऑपरेटर, राइट? log, sin, e, 10 power, they're all operators, right? Yes, sir. So you cannot cancel it, right? अरे यार seriously, क्या था वो? I forgot. अरे यार, 1 second. Yeah. 7 years back, right? It was like 10x plus 10y. 10x by 10y is equal to x by y. उसमें प्रूव करने का कुछ था। एक आदमी ने क्या, ये ले लो, x by y is equal to x by y, hence proved. He has done it, literally done it. I still can't remember, I can't forget that batch. Yeah. साई किस पे ऑपरेट कर रहा है? अरे बाबा, साई इज अ वेव फंक्शन, भूल गए क्या? साई वेव फंक्शन है जिसमें एनर्जी है, मल्टीप्लाई हो रही है, और साई वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव है ना? हाँ, वेव फंक्शन, और उसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है। अरे हाँ, थर्ड फॉर्म है। दे दो उसको, बहुत झाड़ा था उसको यार। सर ये जो आपने लास्ट इक्वेशन लिखा है वो थर्ड फॉर्म है ना? कौन सा? हाँ, वो सर थर्ड फॉर्म है। मैंने हाँ। तीनों फॉर्म को अंडरलाइन कर दिया ना। गाइस आगे चलें, अभी लिख लिया? Yes, sir. ओके, नाउ अब तक हमने क्या किया? हमने ये समझा कि श्रोडिंगर ने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक अ वेव। जैसे उसने ये देखा इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक अ वेव, सो ही फॉर्मुलेटेड अ डबल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन। बस, गेटिंग इट? उसके अलावा कुछ नहीं। फिफ्थ स्टेप में इक्वेशन को डिवाइड किया। हाँ बेटा, इससे डिवाइड किया, बताया ना, दिस टर्म से। वन सेकेंड, आई डिवाइडेड बाय दिस टर्म। अरे कहाँ गया यार? हाँ,
this particular terminology. Getting it? इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो आई विल गेट दिस इक्वेशन. So I guess you understood what exactly happened, right? ये चीजें और कहीं नहीं लिखी हुई है, तुमको पता होना चाहिए कि कैसे किया, ताकि थोड़ा माइंड क्लियर हो कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था. डन? Yes, sir. ओके. सर इसमें से यूज कौन सा करते हैं? क्या? इसमें से कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? अरे वो जो पहला इक्वेशन डाला ना, निकाला डाउ टू साई बाय डाउ एक्स स्क्वायर वाला, दैट इज सिंपल टू यूज. ठीक है, वेरी फर्स्ट इक्वेशन जो यूज किया था. now understand the important thing here. Now how he can tell everything about an electron or everything about an atom with the help of this double differential equation. ठीक है, now मैं क्या कर रहा हूं, steps which are followed by our beloved Schrödinger. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि क्या क्या किया, कैसे कैसे किया उसने. ठीक है, नाउ मैंने एक इक्वेशन निकाली थी, दैट इज डाउ टू साई बाय डाउ एक्स स्क्वायर प्लस डाउ टू साई बाय डाउ वाई स्क्वायर प्लस डाउ टू साई बाय डाउ जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0. एग्रीड? अब तक तो रट गए होगी कोई इक्वेशन. देखो यार, आई विल टेल यू एग्जैक्टली. ठीक है, श्रोडिंगर है ना, श्रोडिंगर, वो इतना कंफ्यूज हो गया था अपनी थ्योरी के बाद कि वो कहता था कि ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती, और ऐसी चीज क्या नाम है, ऐसी चीज जो नहीं भी हो रही है वो भी होगी. तो दैट वाज द थ्योरी गिवन बाय श्रोडिंगर बिकॉज ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट प्रोबेबिलिटी. पता है क्या, वो इस थ्योरी के बाद इतना डिप्रेशन में आ गया था कि एक्चुअली ही लेफ्ट द फील्ड ऑफ फिजिक्स and chemistry per se and shifted to bio. So Schrödinger? seriously? I'm not kidding. There was something like अभी किसी ने पूछा श्रोडिंगर कैट के बारे में, right? तो it is just read it, like you'll get confused. अरे बाबा, सर एक थॉट एक्सपेरिमेंट था वो कि अगर कैट और बॉम्ब एक बॉक्स में है और बॉम्ब जो वो 50% उसका चांस है फटने का, तो बॉक्स के जस्ट खुलने से पहले कैट जिंदा होगी या मरी होगी. तो उसका आंसर है कि कैट आधी जिंदा होगी और आधी मरी होगी. ऐसे टाइप की चीज है उसमें. सर आंसर था कि कैट एक ही वक्त पे दोनों होगी, मतलब जिंदा और मरी होगी. सब सही में, क्योंकि खोलने तक हम लोग को पता तो नहीं चलेगा और खोलने के बाद ही पता चलेगा ना. तो दोनों स्टेट में हो सकते हैं. हाँ, तो सीन ये नहीं है, सीन ये है कि वो इतना घुस गया ना अंदर इस चीज के कि अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन नहीं मिला, बिकॉज ही हैड अ वेरी क्यूरियस माइंड. तो आइदर यस और आइदर नो, ही मेड हिमसेल्फ टू स्टैंड इन द सेंटर लाइन अगेंस्ट हिज नेचर. ऐसा हुआ था उसके साथ, यू नो दैट. एनीवेज लिसन, हम इस पे डिस्कस करते हैं. He did a very nice thing, that is he discovered the structure of an atom and that was correct, because till now we don't have any drawback of Schrödinger. हाँ, वो अलग बात है, कोई पूरी तरह समझा नहीं है फिर भी, right? Anyways listen, he formulated this equation, right?
श्रोडिंगर इक्वेशन दिख रही है? Yes, sir. ओके, नाउ व्हाट इट इज, यहाँ पे ना बोहर की जो एनर्जी वैल्यूज थी उसने ये एनर्जी वैल्यूज डाली और वेरियस एनर्जी वैल्यूज डालने के बाद उसको हर एक एनर्जी लेवल के अंदर ना बहुत सारे वेव फंक्शंस मिले. गेटिंग इट? सो he used the energy values of various shells given by Bohr, and he got various wave functions. वेव फंक्शंस को कैसे डिनोट करते हैं? साई से. गेटिंग इट? तो उसने एक एनर्जी वैल्यू डाली पहले शेल में, फिर दूसरे शेल की वैल्यू डाली, फिर तीसरे शेल की वैल्यू डाली, फिर चौथे शेल की वैल्यू डाली. तो ऐसे वैल्यू डालते डालते उसने सारी इक्वेशन सारे एनर्जी लेवल्स के लिए सॉल्व किया. एंड देन व्हाट ही ऑब्जर्व दैट he got various he got various psi functions. Obviously उसने रैंडम एनर्जी मतलब जो एनर्जी डाली थी और उसका रैंडम सॉल्यूशन निकाला था, तो उसको एक एनर्जी के पीछे बहुत सारे वेव फंक्शंस मिले. गेटिंग इट? तो ऑल द वेव फंक्शंस वर नॉट फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन. तो उसने क्या किया? ही डिड फिल्टरेशन. क्या किया उसने? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं कि सारे वो क्यों नहीं अप्लाई होते इलेक्ट्रॉन पे? नहीं, 1 सेकेंड बता रहा हूं कि उसने ना एक एनर्जी वैल्यू डाली, ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन लेके बहुत सारे वेव फंक्शंस फॉर्मुलेट किए. जब उसको वो फॉर्मुलेट करके मिला ना, तो एक एनर्जी लेवल पे उसको लेट से 25-30 वेव फंक्शंस मिले, बट सारे वेव फंक्शंस वर नॉट फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन. तो उसको वो वेव फंक्शन फिल्टर करने पड़ेंगे ना जो कि इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है और एक्चुअली में जो वेव फंक्शन है, राइट? यस सर. तो उसने क्या किया? फिल्टर कंडीशन लगाया. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन इस प्रोसेस पे. फिल्ट्रेशन के लिए 4 कंडीशन लगाई. कौन कौन सी? पहला, साई शुड बी कॉन्टिन्यूअस. सपोज करो कि ये एक इलेक्ट्रॉन वेव है जो कि रेडियस के अलॉन्ग मूव कर रही है और ये साई है. खुद सोचो, और न्यूक्लियस से तुम्हें वेव इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, एक पर्टिकुलर रेडियस पे वो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया फिर आ गया. ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन है अचानक गायब हो गया फिर आ गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? No, sir. नहीं. तो ये वेव फंक्शन उसने डिस्कार्ड किया बिकॉज इट इज डिसकंटिन्यूअस. तो उसने बोला सारे वेव फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस. उसके बाद साई शुड हैव सिंगल वैल्यू. साई का जो वैल्यू होना चाहिए था वो एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए था. इसका क्या मतलब है कि साई है, रेडियस है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सडनली उसी रेडियस पे एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से स्प्लिट कर गया. एक बात बताओ, यहाँ इस रेडियस पे इलेक्ट्रॉन है, इस रेडियस पे इलेक्ट्रॉन है, इस रेडियस पे सडनली एक इलेक्ट्रॉन 2 में स्प्लिट कर गया. पॉसिबल है क्या? नो सर. No, तो sir. एक ही रेडियस पे मेरे पास 2 वेव फंक्शन आ गए. पॉसिबल है क्या ये चीज? नो सर. नहीं ना. सो ऑब्वियसली इट शुड हैव हाउ मेनी वैल्यूज? 1 सर. हाँ, सिंगल वैल्यू.
तो सडनली ज्यादा ज्यादा आप फर्स्ट वाला फिर से समझा सकते हैं? हाँ बेटा, उसने कहा था वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, सडनली गायब हो गया उस रेडियस पे, फिर से अचानक आ गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं कि टेलीपोर्टेशन? लेकिन सर ऐसा वेव फंक्शन आएगा कैसे बेटा जो मैंने क्या कहा था, डिस्कंटिन्यूअस? उसने सिर्फ एनर्जी डाल के इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला। जब आदमी जनरल सॉल्यूशन निकालता है ना तो बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, तो उनमें से कुछ वेव फंक्शंस होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो उसको वैलिड वेव फंक्शन लेने पड़ेंगे ना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिल्टरेशन। मतलब इतने सारे डिसकंटिन्यूअस जो वेव फंक्शंस मिले थे उसमें से एक ही कंटिन्यूअस होगा क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली बताता हूँ, सब बताता हूँ, पहले इतना समझो जो बता रहा हूँ, ठीक है? अब एक बार बताओ, अच्छा आई विल टेल यू, पहले शेल में ना एक मिलता है, दूसरे शेल में 4 वेव फंक्शन मिलते हैं, कितने? 4 सर। तीसरे शेल में 9 वेव फंक्शंस मिलते हैं एक्चुअली, चौथे शेल में 16 सर। 16 वेव फंक्शंस मिलते हैं, गेटिंग इट? सर फिर 25 36 हाँ सारे हाँ हाँ, उनका स्क्वायर स्क्वायर के रहता टर्म्स है में, सब। स्क्वायर के टर्म्स में आता है एक्चुअल में, गेटिंग इट? ठीक है, चलो अब सुनो, उसने कहा था साई शुड बी फाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू अटेन नहीं करना चाहिए, तो खुद ही बताओ, एक रेडियस पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सडनली साई इंफिनिटी हो गया, पॉसिबल है क्या? नो सर। सडनली इनफाइनाइट टच कर रहा है एक पर्टिकुलर रेडियस पे साई की वैल्यू, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव व्हाट? Infinite value, it should be finite, getting it? Last but the most important condition, सर नोट्स बना रहा हूँ, सही में लिखना है क्या? हाँ सेकंड ये क्या हो सर गया? इतना बिल्डअप किया आपने कि सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। एक्चुअली आई विल टेल यू व्हाई, ये अभी नहीं समझोगे, ठीक है? तो गो टू हेल से तो मुझे बाद में याद दिलाना कि सर ये गो टू हेल वाला पॉइंट बच गया है, राइट? तो बाद में आएगा ये, बट समझ में आ जाएगा तुमको, तुम खुद ही बताओगे ये पॉइंट क्या होना चाहिए, ठीक है? I know I'm good in that. चलो आगे चलते हैं, राइट? सर एक सेकंड, आप एक बार एकदम शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ क्यों नहीं, देखो डबल डिफरेंशियल वेव फंक्शन आई, हाँ आ गई ना, वेरी गुड। उसके बाद क्या किया उसने, उसको सॉल्व किया, ठीक है, बहुत सारी बोर वाली एनर्जी वैल्यूज डाल के, तो हर एक एनर्जी वैल्यू के पीछे ना वेव फंक्शन आ रहे थे बहुत सारे, बट सारे वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं कर रहा था, तो उसको वो वेव फंक्शन चाहिए थे जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फॉलो करे, तो उसको फिल्टर करने के लिए उसने 4 कंडीशन डाली, कौन कौन सी? साई शुड बी कंटिन्यूअस, साई शुड हैव सिंगल वैल्यू, साई शुड बी फाइनाइट, and fourth गो टू हेल। getting it? So after applying all these 4 conditions, he found out the psi functions which are actually followed by electrons, right? So I got psi functions followed by क्या? Which are followed by electrons, right? Getting it? Okay, which are followed by electron. इन psi functions को ना उसने नाम दिया आइगन्स फंक्शन। अब ये क्यों दिया वो मुझे नहीं पता, आइगन्स कौन है, ठीक है, बट he has given the name आइगन्स फंक्शन। Getting it? Getting Yes, it? sir. Yes, sir. अब इन आइगन्स फंक्शन को he solved finally, right?
he solved the Eigen's function, right? Do you know what he got? Finally, he got quantum number. सर सॉल्व किया मतलब फिल्टर किया ना, तो सारी अलग अलग वैल्यूज आ रही थी, उसमें से इसके बाद सिलेक्ट तो किया। वेव फंक्शन आई, जैसे साई इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, गेटिंग इट? तो एक सर वेव फंक्शन ये फंक्शन अलग है सर, हाँ, मतलब इस पे बेस से अलग, पूरा अलग है। मतलब आपने जो अभी पढ़ाया उस पर बेस्ड है, ये मतलब कंप्लीट अलग टॉपिक है? मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या है। नहीं सर, आपने अब जो श्रोडिंगर्स मॉडल समझा है ना श्रोडिंगर सर? ने डबल डिफरेंशियल वेव फंक्शन बनाया, ठीक है? हाँ, इसके तो बाद ये डबल उसके डिफरेंशियल अंदर वेव फंक्शन का काम क्या था? उस डबल डिफरेंशियल वेव फंक्शन का काम था कि मुझे बहुत सारे वेव फंक्शन देना। तो उसने जब मुझे बहुत सारे वेव फंक्शंस दिए ना यहाँ पे, ये अब मैं उन वेव फंक्शन को एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं। तो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन से वेव फंक्शन आए, वेव फंक्शन को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? क्वांटम नंबर। हाँ, तो क्वांटम नंबर्स इज नोन एज NLM। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, NLM, और आखिरी होता है S। बट वो इससे नहीं आया था, वो उसने खुद इंट्रोड्यूस किया था। सही, मतलब सॉल्व करके क्वांटम नंबर मतलब कैसे आए? बताऊंगा। तो फिर वो श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज क्या है? बेटा उस इक्वेशन से तो वेव फंक्शंस मिले, उन वेव फंक्शन से क्वांटम नंबर मिले। तो खुद सोचो ना, एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, तो सोच लो एक डब्बा है जिसमें बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, राइट? अब हर एक चॉकलेट का एक पीस है जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, करेक्ट? तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक बहुत बड़ा स्टोर रूम है, जो जिसको सॉल्व करूंगा तो बहुत सारे वेव फंक्शंस आएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। इनको सॉल्व करूंगा तो इसका, इस वेव फंक्शन का क्वांटम नंबर मिलेगा, इस वेव फंक्शन का क्वांटम नंबर मिलेगा, इस वेव फंक्शन का क्वांटम नंबर मिलेगा। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? दे विल टेल। सर स्पिन भी आएगा ना? स्पिन खुद ने किया, उसने खुद निकाला था। एस क्वांटम नंबर इज फॉर्मुलेटेड बाय श्रोडिंगर। सर मतलब अलग से उन्होंने बनाया हाँ, था? खुद डिवाइस किया था, वो यहाँ से नहीं आया था। यस, यू हैव रेज्ड योर हैंड। सॉरी, गलती से हो गया। अच्छा फाइन, चलेगा। तो आइगन्स फंक्शन आया, आइगन्स फंक्शंस को आइगन्स वैल्यूज भी बोलते हैं, ठीक है? तो कभी टेंशन में मत आना। तो सीन क्या है, इन आइगन फंक्शन को सॉल्व करने के बाद क्वांटम नंबर्स आए। क्वांटम नंबर्स आर द वन व्हिच विल टेल यू, खुशी, तो जो आपने स्टार्टिंग में वो ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स दिया था, वो ये आइगन फंक्शन था ना? हाँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बट वो एक्स एक्सिस के अलाउंग था सिर्फ। ओके, हाँ, गेटिंग इट गाइस? लिख लिया? हाँ, वो आइगन फंक्शन था। तो मेरे पास बहुत सारे आइगन फंक्शन आएंगे डबल डिफरेंशियल को सॉल्व करने के बाद, ठीक है? और हर एक आइगन फंक्शन मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा, क्वांटम नंबर्स देगा इन शॉर्ट। तो सर हमें जब भी क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो फिर यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, पहले उसको डबल डिफरेंशिएट। नहीं, तुम्हारे करिकुलम में इतना सब कुछ नहीं है, वो तो मैंने बताया, ठीक है? अदरवाइज बाउंस मार जाता। हाँ सर, ये सुन के ही ऐसा। इतना नहीं करना है, डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट समझेंगे, ठीक है? सॉल्यूशन पार्ट नहीं है तुम्हारे यहाँ पे श्रोडिंगर का, वो PhD करोगे ना फिजिक्स के अंदर तब आता है, MSc के अंदर भी इतना नहीं है, इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर भी थोड़ा बहुत है। सर, हाँ सर आप एक बार एग्जैक्टली बता सकते हो वेव फंक्शन होता क्या है? बेटा, वेव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो अरे यार, वेव मोशन डिनोट करता है। सर जैसे sin x हो गया तो sin sin वेव x हो फंक्शन गया, है। cos x हो गया, राइट?
but it is a function of time as well as wavelength. दोनों का फंक्शन होता है। सर तो इसका मतलब क्या होगा कि चौथे शेल में 16 वेव फंक्शन है और ऐसा? अरे वो बताऊंगा ना तुमको, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी अभी तो जस्ट शुरू किया है, राइट? सारी चीजें आपस में आके मिलेंगी तब समझ में आएगा, अच्छा ऐसा था। अंडरस्टूड? अभी मैं उन ओके चीजों के नाम ले ही नहीं पाऊंगा जो तुमको पता नहीं है, तो पहले वो इंट्रोड्यूस करूंगा तब बताऊंगा ना कि क्या मतलब था उसका, है ना? चलेगा आज आगे? यस सर। क्या कूल। Okay, in the end of this topic, no, you'll come to know exactly what Schrödinger did. ठीक है, तो चल सब समझ में आ जाएगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो इतना टेंशन मत लो, ठीक है? नाउ लिसन, रिप्रेजेंटेशन। सर अभी आप क्वांटम नंबर्स के बारे में बोलेंगे ना? ना ना, इतनी जल्दी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वांटम नंबर्स आखिरी में पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन into polar coordinates. Suno, guys, listen. Thing is, I know that atom is spherically symmetrical, correct? यस सर। अगर कोई भी एटम स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो मैं अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड में दूं या रेडियस और एंगल्स में दूं, तो कौन सा बेटर रहेगा? देखो दो ऑप्शन है, ये न्यूक्लियस है, एक ऑप्शन ये है कि इतने रेडियस पर इस पर्टिकुलर एंगल पर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं इस पॉइंट पे x1 y1 z1 बताऊं, फिर दूसरे पॉइंट पे x2 y2 z2 बताऊं, फिर तीसरे पॉइंट पे x3 y3 z3 बताऊं, या एंगल्स शिफ्ट करके सिर्फ रेडियस पे पॉइंट्स बताऊं, विच इज बेटर? सर एंगल्स और रेडियस। फर्स्ट वाला। इसको ना पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। Do you know तो एक what? बार एक्सप्लेन करेंगे क्या? Do you know what? Do you know what? What stupidity happened right now? हाँ बताता हूँ बेटा। हाँ, मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक एटम है विच इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, अगर मैं हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने लगा, तो हर एक पॉइंट पे मुझे एक्स वाई जेड चाहिए होगा, एंड यू नो दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइट? दूसरा ऑप्शन ये है कि सेंटर को न्यूक्लियस को सेंटर मान लिया, उसके अलोंग रेडियस प्लॉट किया, इस रेडियस पर इस पर्टिकुलर एंगल पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो एंगल और रेडियस के साथ पोजीशन बताना ज्यादा सिंपल है मेरे लिए एक स्फीयर के लिए, या फिर हर एक पॉइंट पे मैं बार बार इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताऊं, विच इज बेटर? सर एंगल एंड रेडियस। एंगल एंड रेडियस। तो इसको क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। गेटिंग इट? नाउ हाउ टू कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू अ पोलर फॉर्म सर। हाँ, तो एक काम करते हैं, या ठीक है,
ना फील फैक्टर नहीं रहेगा ये, हटा। हाँ लिसन, सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक्सिस x ले लो, ये एक्सिस y ले लो, और ये एक्सिस z ले लो, और ये एक्सिस y ले लो। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। अब भी क्या करना है, ओरिजिन पे पॉइंट रखकर यहां तक रेडियस खींचना है, ठीक है। नाउ लेट्स से ये जो पॉइंट था वो x को, y को और z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये कौन सा कोऑर्डिनेट्स हो गया, कार्टेशियन या पोलर? सर कार्टेशियन। न्यूक्लियस से इस पॉइंट का डिस्टेंस इज r, कितना? r सर। ये जो रेडियस वेक्टर है ना, व्हाट इट इज डूइंग, दिस रेडियस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद z एक्सिस, ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ सर। इसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन पर, that means I am talking about this projection. This projection, it is making an angle of phi with x axis, ठीक है, ठीक है। यस सर। नाउ टेल मी, अगर मेरे को z एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है r और थीटा की टर्म्स में, तो मैं z को क्या लिख सकता हूँ, ये r है, ये थीटा है, तो इसका कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस कितना आएगा? वेरी गुड, r cos थीटा, एग्रीड? यस। और इसका कंपोनेंट 90 डिग्री नीचे इधर एक्स वाई प्लेन में क्या आएगा ये? सर r sin थीटा। वेरी गुड। ये r sin थीटा वाला जो वेक्टर है ना, वो x एक्सिस के अलोंग फाई बॉन्ड बना रहा है, फाई एंगल है, तो इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस में क्या आएगा? सर r sin थीटा cos फाई। गाइस समझ में आया ये? गाइस ये समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर। सर एक और बोलो। अरे सबकी बात कर रहा हूँ भाई, वेक्टर है वेक्टर। सर वो लास्ट पार्ट एक बार। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ कि सुनो, एक काम करो, एक कमरे में बैठे हो तुम, अरे क्यूबिकल कमरे में बैठे हो ना? हाँ सर। अरे बच्चा पार्टी, क्यूबिकल कमरे में बैठे हो सारे? यस। तो एक कोना पकड़ लो, मतलब बैठना नहीं है वहां पे, उस कोने को देखो, देखा? उस कोने से एक वेक्टर ड्रॉ करो रूम के बीचों बीच। ड्रॉ किया, इमेजिन किया रूम के बीचों बीच, हाँ? यस। जो रूम की हाइट है ना वो z एक्सिस है, क्या है? हाँ, और रूम की हाइट z एक्सिस है, और ये जो तुमने रेडियस वेक्टर अज्यूम किया है ना, वो थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है? थीटा। तो अगर z r cos थीटा हो गया, तो उसका परपेंडिकुलर पार्ट कहाँ पे लाई कर रहा है? सर एक्स वाई प्लेन पे। जहां पे जिस प्लेन में तुम बैठे हो, है ना? हाँ सर। है ना? यस सर। हाँ, तो तुम यहाँ बैठे हो, तो तुम्हारे पास आ रहा है r sin थीटा, तो वो जो नीचे वाला वेक्टर है ना, जो एक्स वाई प्लेन में गिर रहा है, वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो लेंथ को फाई मान लो। तो ये वेक्टर इस लेंथ के साथ फाई बना रहा है, तो चले से x क्या होगा? r sin थीटा cos फाई, इधर आ जाएगा इसका कंपोनेंट। देखा तुमने करके? यस सर। आया? हाँ सर। तो y एक्सिस क्या होगा इसके 90 डिग्री पे जो है?
सर sin थीटा sin phi. Getting a point? Yes. तो z क्या आएगा? r cos थीटा, या आ गया r sin थीटा, इसका कंपोनेंट इस साइड पे कितना आएगा? r sin थीटा cos phi, which is making an angle of phi. ये वाला कितना आ जाएगा? r sin थीटा sin phi. Agreed? सर आपने जो y एक्सिस के एडजेसेंट बनाया सर वो क्या है? y एक्सिस के एडजेसेंट क्या बनाया? कुछ भी तो नहीं बनाया. y एक्सिस तो ये रहा. सर वो जो कंपोनेंट को जो मीट कर रहा है ना सर, r sin थीटा हुआ. ये हाँ सर. ये तो उसका प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पे. अच्छा प्रोजेक्शन. ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, इसका प्रोजेक्शन आएगा ना इधर. हाँ सर. हाँ, दैट इज r sin थीटा. सर इसका मतलब हम किसी भी पॉइंट को r और दो एंगल्स में या कर सकते हैं. तो वी हैव सक्सेसफुली converted Cartesian coordinates into polar coordinates. Agreed? Yes sir. चलो आगे चलें guys. Yes sir. चलो great. Now listen. Main point again. Insert new board. Yeah. Now listen. Some important points. अब तक हमने क्या किया? जो मेरा वेव फंक्शन है ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड एक्सिस का, राइट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, करेक्ट? जब मैंने इस वेव फंक्शन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया, तो शैल आई से दैट साई विल बी अ फंक्शन ऑफ रेडियस, थीटा एंड फाई. एग्रीड? यस सर. तो इसको मैं एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस बोल सकता हूँ, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बोल सकता हूँ, एज अ फंक्शन ऑफ फाई बोल सकता हूँ. गेटिंग इट? काफी फॉरेन ऑथर्स की बुक में इस एफ सिंबल को ना कैपिटल आर लिखा जाता है. इट शोज रेडियस, फंक्शन ऑफ रेडियस. फंक्शन और कैपिटल आर में फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है. सो आर इज अ फंक्शन ऑफ आर. गेटिंग इट? इसको अल्फा लिखा जाता है, अल्फा थीटा, और इसको बीटा फाई लिखा जाता है. गेटिंग इट? सो साई is a function of radius, is a function of what that theta is a function of phi. Understood? Yes. हाँ, ये कैपिटल आर, थीटा, अल्फा और बीटा सिर्फ एफ की जगह लिखा है, which denotes function only. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. Now understand one thing. This is known as radial part. क्या बोलते हैं? Radial. And these two things are known as angular part. Angular part of wave psi. So I have two parts. One is radial part, other is angular part. Radial part depends on angles. Oh, sorry, depends on radius. And angular parts depends on Angles. Angle. on angles, obviously. Now understand one more thing. अब मैं क्वांटम नंबर्स की बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना है, इस चीज को याद रखना. रेडियल पार्ट इज अ फंक्शन ऑफ एन और एल. वन सेकेंड. या रेडियल पार्ट इज अ फंक्शन ऑफ टू क्वांटम नंबर्स एन एंड एल. अल्फा थीटा वाला पार्ट इज अ फंक्शन ऑफ एल एंड एम. And beta is a function of m.
ये चीजें प्लीज अपने जहन में डाल लेना, एडवांस में पूछा जाता है, ये पता होना चाहिए कि रेडियल पार्ट is a function is depending on n and l, there is 2 quantum numbers. Alpha wala part, which is a theta part, angular part, is depending on l and m, or beta phi depends on only m value. These are quantum numbers. सर थीटा हमारा हमेशा एंगल विद z एक्सिस रहेगा ना? या एग्जैक्टली। ओके सर, डिफाइन हो चुका, वो डिफाइन हो चुका। गेटिंग इट? हाँ सर। अरे क्या हुआ तेरे को इतना एनर्जी? डन? 2 मिनट से कॉपी कर। Yes. चलो ठीक है, फाइन। अदर थिंग्स विल डू इन नेक्स्ट क्लास। कॉपी कर लो। सर डन हो गया सर। So